ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੁਪਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁਣ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਵੀ ਸੇਤੀਆ, पूर्व राज मंत्री पंजाबी भाषा अकैडमी राज मंजू गोयल जी, बल्लूराम गोदारा कॉलेज आदेश बागला, ओम प्रकाश सुखीजा, विंदु गोस्वामी, शरद जसूजा जी, रवि अरोड़ा अबोर, जसवीर शर्मा ददाहुर, विशाल मन्नत, सुलखन सिंह, दीपक मिड्डा जी, रजिंदर सोनी जी, PSO बलदेव कुमार प्रेम बजाज, संजीव कुमार चुग, धीरज गहलोत, गिरधारी लाल मेहड़ा, विधायक पुत्र विशाल गौड़ जी, शमिंदर सिंह विजय गोयल, संदीप चौहान, राजकुमार जोग, MC मिड्डा जी, श्रीमती पूजा गोस्वामी, डॉक्टर कपिल सेतिया, अर्शदीप गिल, राजकुमार गेरा, विनोद कुमार गोयल, कृष्ण कुमार भार्गव, लोकेश मनचंदा, अभिषेक ईशान, संजय मित्तल, आशीष अरोड़ा, सुरेश रहेजा, रुकमा चंद, कमल नारंग, संदीप शेरेवाला, विष्णु पुरोहित ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਰਜਵੰਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਐਸੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੀਏ। सुंदर लंगर का आयोजन तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में पधारे हमारे मरीजों के लिए, उनके साथ आए हुए इनके मित्रों के लिए, सभी के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सबसे वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं सच्चे पातशाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि दास नूं आप सब संगतां की सेवा करने का मौका मिला। दास श्री मुक्तसर साहिब दे विच सरकारी हस्पताल दे नाल आश्रम बनया, उत्थे मरीजां ते उन्हां दे वारसां दे लई लंगर की सेवा निर्विघन करीब 10 सालों तो ऊपर चल रही है। ये सतगुरु जी आप ही सेवा लै रहे हैं। एक हस्पताल तो लंगर की सेवा शुरू हुई, साडा लंगर रुपाणा है मुक्तसर दे नाल, तो मैं अपने लंगर तो ही लंगर तैयार करके अपने घर दे विच ही लंगर बना करके सरकारी हस्पताल दे विच लैके आंदा सी। इस सेवा तो
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 24 ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੰਦੂ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਰਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਜਾਵੇ ਹਨੇਰੀ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਮ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਨਹੀਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਖਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ मैं धन्यवाद करता मैंने सेवा का मौका दिता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पीएमओ साहब, मेरे साथी अधिकारीगण व इस संस्था से संबंधित पदाधिकारी, सर्वप्रथम तो हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने एक नेक कार्य, नेक नीयत से शुरू करने का जो बीड़ा उठाया है। हमारी शुभकामनाएं हैं और पूरा सहयोग रहेगा कि ये जो आपने शुभ काम शुरू किया है ये बिल्कुल सफलता से संचालित हो। चिकित्सालय प्रशासन की तरफ से पीएमओ साहब बैठे हुए हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस कार्य में चिकित्सालय की तरफ से ना सिर्फ पूरा सहयोग रहेगा, समय बेसमय अगर कोई किसी और तरह के सहयोगी यानी आर्थिक भी अगर हमसे उम्मीद करें व्यवस्था के अलावा, तो भी हम लोगों का प्रयास रहेगा कि किसी भी कारण से ये जो आपने काम शुरू किया है ये बंद नहीं हो और दिनों दिन प्रगति करता रहे। और जैसे कि आपके संस्थान की मंशा है कि धीरे धीरे इस संस्थान से शुरू करके पूरे प्राइवेट चिकित्सालयों में इसको फैलाया जाएगा। और उनकी तरफ से भी हम काफ़ी सालों से यहाँ बैठे हुए आपको आश्वासन दिलाते हैं कि जब कहीं जहाँ कहीं किसी सहयोग की जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे। नंबर 1। एक और सदनीयत आपने जो जाहिर की है मंशा यहाँ पे कि जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं या जो पागल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए भी एक आश्रम की स्थापना की जाए, तो मैं वाकई आपके मंशा की बहुत बहुत तहे दिल से तारीफ करता हूँ, दिल से।
और आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसा कोई आश्रम शुरू किया जाता है तो उसमें चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित जो भी सहयोग वह हॉस्पिटल की तरफ इच्छित होगा। मैं पीएमओ साहब की तरफ से, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, मेरे लिए विश्वास दिलाता हूँ कि उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा, ना सिर्फ चिकित्सकीय परामर्श का बल्कि मेडिसिन का भी। और चूंकि काफ़ी मंच भरा हुआ है और काफ़ी लोग अपने अपने विचार रखना चाहेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहता, मैं धन्यवाद पुनः एक बार प्रेषित करता हूँ। और टीम सदस्य बिंदु जी को विशेष तौर से मुझे लगता है कि इस तरह के अगर 5 लोग भी जुड़ जाएंगे तो जो नेक मिशन बाबा जी ने शुरू करने की नीयत से यहाँ पे पधारे हैं वो पूरी तरह से कामयाब हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इत्थों दी साध संगत दा जिन्हां ने इस शुभ कार्ज लई बहुत ही हौसला दिता है, गुरप्रीत सोनी बाबा जी रपाने वालियां नूं। मैं कुछ तो बाबा जी आप ही दस के गए आपकी जिंदगी के प्रति, और कुछ 2-4 मिनट मैं थोड़े लवांगा इन्हां दी जिंदगी ते आधारित थोड़ी जिहियां गल्लां थोड़े नाल करूँगा। बाबा जी सेवा दे पुंज और एक हस्पताल तो लंगर शुरू करके इस वेले 25-26 हस्पताल मुक्तसर दे विच जिन्हां नूं सुबह शाम लंगर वारसां लई और मरीजां लई पहुँचा रहे ने। हर साल 15 अप्रैल नूं जो शादियां करते आ गरजवंद बच्चों दियां, उन्हां दे नाल मोढे नाल मोढा ला के उन्हां नूं जो कबीलदारी दे विच नवां घर शुरू करने लई समान चाहिए वो भी दिंदे आ हर साल। पिछले साल लॉकडाउन करके वो शादियां नहीं हो सकियां, इस बार पूरी उम्मीद है। रत्ता टिब्बा मुक्तसर के नेड़े एक गौशाला बनी है, वो बनाई तो बेशक सरकार ने सी, पर वो सरकार तो वो ठीक नहीं आया काम, तो वो जी जिम्मेवारी आ वो भी बाबा जी को वो भी बहुत बाखूबी निभा रहे हैं बाबा जी। और इस बार शादियां भी उत्थे ही करने का विचार आ, जे इजाजत मिल गई, कोरोना के कारण लॉकडाउन ना होया, SDM साहब को 2 बारी गेड़ा मारिया या मलोट, क्योंकि उन्होंने एरिए के विच ये जगह पैंदी आ और वो आप खुद कोरोना की लपेट दे विच SDM मलोट, इस करके हजे वो पूरा उम्मीद नहीं कि इजाजत देन या ना देन। दूसरी गल, बहुत सारे दोस्त मुक्तसर दे विच जो एंटर करते हैं आप गए होंगे, जिहड़ा गोल चौक आ बठिंडा रोड के उत्ते गोल चौक बनया है बिल्कुल सोनी बाबा आश्रम जी के नेड़, वो भी श्री मुक्तसर साहब नूं गुरप्रीत बाबा सोनी जी की देन है, क्योंकि प्रशासन ने हथ खड़े करते सी। कोई भी इंसान एक इन्हां कामां नूं सिरे नहीं ला सकता जिन्ना चਿਰ लुकाई का लोगों का साध संगत का साथ ना हो। स्वामी जी वह मंच पे बैठे सब मेरे साथी और आई हुई जनता, मैं 2 मिनट तो इन्होंने ज़्यादा दे दिए, मैं 1 मिनट में ही ख़त्म कर दूंगा। सबसे बड़ी बात है, धरती पे ऐसे माई के लाल बहुत कम पैदा होते हैं जो जनता की सेवा के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। जैसे कि अब ये स्वामी जी आए हुए हैं, इन्होंने मुक्तसर में भी मेरे रिश्तेदारी बड़ी है मुक्तसर में, सब ने बताया बहुत काम किए हैं और सबसे बड़ा काम है जो हॉस्पिटल में खाना देना करना। और अब इन्होंने गंगानगर में पैर रखा है, इनकी सपोर्ट के लिए गोस्वामी जी इतना काम कर रहे हैं और शरद जसूजा भी सब अपना टाइम निकाल के कर रहे हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं और इनको भी जो भी सहयोग होगा हम करेंगे और ये हमेशा कामयाब रहे, यहाँ खूब बड़े से बड़ा और कार्य करें। थैंक यू वेरी मच। सम्मान की योग्य है आज के कार्यक्रम के आयोजक और मुख्य सेवादार बाबा गुरप्रीत सिंह सोनी साहब, डॉक्टर बलदेव सिंह जी, हमारे प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रेम कुमार बजाज जी, डेप्यूटी कन्वीनर डॉक्टर धीरज गहलोत जी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी साहब, सतपाल जी, सुरेंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई विजय गोयल साहब जो हमेशा अच्छे कामों में हमेशा आगे रहते हैं,
प्राचार्य बलूराम गोदारा कॉलेज मंजू गोयल जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान साथी राजकुमार जोग साहब, हमारे साथी अमरजीत गिल साहब, ओम सुखीजा जी, सेवादार गुरतेज सिंह जी, सीता स्वामी जी, दीपक मीडा जी, विशाल गौड़ जी, विनोद कुमार जी, डॉक्टर कपिल सेतिया जी, मान्य रवि सेतिया जी, छोटे भाई शरद जसूजा जी और हमारे प्रिय छोटे भाई बिंदु गोस्वामी जी और तमाम मंच पर तमाम जो हमारी डिग्निटरीज विराजमान है, जिनका मैं नाम ले सका हूँ या नहीं ले सका हूँ, आप सबको और तमाम आप सबको मेरी ओर से राम राम सा नमस्कार। विनोद जी गोयल साहब, आपका इस्तकबाल करता हूँ। खूब आशीर्वाद, हमेशा विनोद गोयल साहब का आशीर्वाद रहता ही रहता है और आगे भी रहेगा। हर खुशी खुदा आपका मुकद्दर कर दे, हर खुशी खुदा आपका मुकद्दर कर दे, खुशियों के फूलों से आपका दामन भर दे। आप जिस वक्त और जिस लम्हा ज्यादा खुश हो, खुदा उसी लम्हे को 1000 बरस का कर दे। आज बहुत ही अजीम और बहुत ही मुबारक मौके पर हम तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि सच्चाई के रास्ते पे, अच्छाई के रास्ते पे, सेवा के रास्ते पर कैसे चला जाता है। मैं अपनी ओर से भाई बिंदु गोस्वामी जी का और भाई शरद जसूजा जी का दिल से खैर मकदम करता हूं कि आपने ये बीड़ा उठाया और मैं इस मंच से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी जितनी भी ताकत है, मेरा जितना भी सामर्थ्य है, मैं इस उपक्रम के अंदर अपना जी जान से मैं सहयोग दूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे कहना चाहता हूं। भाई बिंदु गोस्वामी अनेकों सालों से, जब मैं बिंदु गोस्वामी बहुत छोटा था और जब तबला बजाता था, बिल्कुल छोटा बच्चा था, तभी से मैं बिंदु को जानता हूं। भाई बिंदु गोस्वामी, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई शरद जसूजा के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। भाई शरद जसूजा ने श्री गंगानगर जिले में गरीब छात्रों को पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए इस गंगानगर में बुक बैंक की स्थापना करी। वो एक यादगार एक चीज आपने बनाई, इसलिए मैं भाई शरद जसूजा को भी इस मंच की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा। दिल से अभिनंदन वंदन करता हूँ और शहर श्री गंगानगर की भूमि पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई राजकुमार जी जोग ने मेरे बारे में बहुत ज़्यादा कह दिया। मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ। मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, एक छोटा सा समाज सेवी हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मुझे बड़ा समाज सेवी मत बनाओ, क्योंकि किसी को पेट पर चढ़ा दोगे तो उसका उतरना भी मुश्किल हो जाएगा। बाबा जी, आपका नाम मैंने पहली बार सुना है और मैं समझता हूँ कि बाबा का मतलब है जो बाल बच्चों से दूर रहे, वही बाबा बन सकता है। जिसने बाल बच्चे पाल लिए वो बाबा नहीं बन सकता। तो आपने जो ये लंगर सेवा पंजाब से शहर श्री गंगानगर में चालू करने का निश्चय किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये शहर श्री गंगानगर की बहुत बड़ी बात है। इसमें बिंदु गोस्वामी जी बहुत तन मन से लगे हुए हैं। ये बड़े कर्मठ कार्य करता है और मैं समझता हूँ कि शहर श्री गंगानगर किसी काम में पीछे नहीं रहता। ये गंगानगर में सैकड़ों संस्थाएं हैं जो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रही है, जिनके अखिल भारतीय स्तर पर भी उन संस्थाओं का नाम है। बाबा गुरप्रीत सिंह जी और आश्रम के समस्त पदाधिकारी, विशाल गौड़ जी, डीसी साहब और समस्त जितने भी हमारे समाज सेवी हिंदू मंच पर विराजमान हैं और सेवादार जो पब्लिक आई हुई है, उन सब का मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में, जिसमें बाबा जी आज एक लंगर का शुभारंभ मरीजों के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर दुखी आदमी ही पहुंचता है, जिसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त मरीजों के लिए
जो दवाइयाँ हैं वो फ्री कर रखी हैं और जांचें फ्री कर रखी हैं। अगर दुखी मरीज़ को दवाइयाँ फ्री मिल जाएं, जांचें फ्री हो जाएं और इसके साथ साथ अगर उनके खाने पीने की व्यवस्था फ्री में हो जाए तो इससे बड़ा उनके लिए पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। और ये हमारे बाबा गुरप्रीत सिंह जी ने आज शुभारंभ करके और कर दिया है, जिससे मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बाबा जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि यदि किसी भी तरह की हमारे से मदद चाहिए, जैसा कि हमारे डीसी साहब ने बताया, तो हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। सहयोग देने के लिए आपको बहुत बहुत ही आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे धीरज जी, आप भी कृपया आइए। धीरज जी, धन्यवाद धीरज जी। हाँ जी। यह जैसा कि भारतीय संस्कृति का आधार सेवा परमो धर्म है, और मैं जहाँ तक समझती हूँ, जब हम भी भूखे होते हैं और कहीं आसपास से हमें भूख की शांत करने की व्यवस्था नहीं हो पाती, तब हमें पता चलता है कि भूख क्या चीज़ होती है। और खास करके जब एक हॉस्पिटल में, जहाँ की गाँवों से सिविल हॉस्पिटल में लोग आते हैं, इतनी दूर दूर से, ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके साथ परिजन आते हैं। भूख की यदि उनकी शांत करने की व्यवस्था फ्री में हो जाए, लंगर मिल जाए, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो इस शुभारंभ के लिए, गंगानगर के लिए बहुत ही ज़्यादा यह सौभाग्य की बात है कि यहाँ हॉस्पिटल में सभी पेशेंट्स के लिए और अटेंडेंट्स के लिए फ्री लंगर की व्यवस्था आज से की जा रही है। तो मैं सभी आयोजकों का इस कार्यक्रम के अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। प्राचार्य बल्लूराम गुदारा, गर्ल्स कॉलेज। इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया है, जैसा कि वे मुख्यसर्मी कर रहे हैं। और हमारा यह सौभाग्य है कि आज उन्होंने यह गंगानगर को भी इसके लिए चुना है। और आए हुए सम्मानित मंच का यथा योग्य अभिवादन। आज जैसा कि मैडम ने बताया कि सेवा धर्म परमो गहनो, सेवा का कार्य सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन यह तलवार की धार पर चलने के समान है, ठीक है ना। जो तुलसीदास ने भी कहा था कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई, ठीक है ना। दूसरे की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो हमारे भारत की संस्कृति है वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की सोच पर आधारित है। जो पश्चिम की सभ्यता है वो भोगवाद पर आधारित है। जैसा कहते हैं कि डार्विन का सिद्धांत था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, शक्तिमान ही जीवितम। ताकतवर व्यक्ति छोटे वस्तु को खा जाता है, लेकिन जो भारत की संस्कृति है वो एक चींटी को, एक बंदर के लिए भी भोजन का प्रबंध करती है, पक्षियों के लिए भी दाने का प्रबंध करती है। तो हम ऐसी संस्कृति के वाहक हैं। तो जैसा कि अपने शुरू से ही है, दर्शन शास्त्र में, भारतीय वेदों में भी ये लिखा गया है कि न तम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। राजा रंतिदेव ने कहा कि भाई मुझे कोई राज्य की कामना नहीं है, ना तम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, मुझे कोई स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा यह है कि इस धरती पर दुख से तड़प रहे प्राणियों का भला हो जाए। धन्यवाद बहुत बहुत। तालियों का स्वागत करें आप, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व मंत्री जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। ओम जी सुखीजा साहब बुक्का भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर कपिल जी सेतिया अभी स्पीच भी देंगे, जब तक आप बुक्का भेंट कर सम्मानित करें। भाई छोटे भाई हरिंदर जी आप भी जाइए। प्रेमी जी हमारे गंगानगर के, हमारे अंतिम कड़ी में हमारे भजन सिंह, हमारे अंतिम कड़ी में गंगा आदरणीय विनोद जी गोयल साहब, उनसे निवेदन है। आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतना बड़ा पुण्य कार्य आज गंगानगर की धरा पे शुरू होने जा रहा है। इसके लिए महामहिम स्वामी जी का मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ कि आपने गंगानगर को चुना और गंगानगर के लिए इनकी जो जरूरत थी वो आज पूरी होने जा रही है। इसलिए आप सबका
बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। ये जो आज शुरू होने जा रहा है, इसका मैंने एक सपना देखा था। मैं अपने मन की बात में आपसे कहूँगा कि मैंने जयपुर के अंदर सुना था कि जयपुर के हॉस्पिटल के अंदर मेरे मित्र थे पवन चौहान जी, उन्होंने वो अपने मित्र मंडली के साथ इसी प्रकार की वैन लेकर के खाना बना करके और वहाँ जाकर मरीजों के लिए और उनके परिजनों साथ आए के लिए वो भोजन लेके जाते थे दोनों समय पर। तो तब से मेरे मन में सपना था कि कभी गंगानगर में भी ऐसा हम कर पाएंगे। तो मैं धन्यवाद हूँ स्वामी जी आपका कि आपने इस गंगा को, जो हरिद्वार वाली गंगा है ना, वो गंगा रूप को आपने यहाँ पे सार्थक किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूँ। उनको भी सम्मानित करेंगे सरदी सूजा जी का। तो हमारी माता जी हॉस्पिटल के अंदर ये चुना कि यहाँ पे लंगर लगाया जाए, और इतने लोगों को देख के जो बाबा जी ने ये सेवा प्रदान करी है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अधिकारियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद मिल रहा है संगतों तो, और सारिਆਂ ने ही इस कुंभ दे विच अपना अपना योगदान पाने लई भरोसा दिता है, और उम्मीद है कि इसी तरह ही पड़ावार पड़ा, पहला थोड़े हस्पतालों फिर बहुतियां इसी तरह ये चलता रहूगा। मैं एक छोटी जी रचना है, क्योंकि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, वो सारा ही पता लग जाऊगा भी सोनी बाबा जी किवें सेवा करते आ, की उन्होंने मन के विच वलवले आ, किवें वो समाज की सेवा करते आ, वो मैं थोड़े नाल थोड़े ਜਿਹੇ शब्दों के विच साझी कर रहा हूँ। हस्पतालों दे विच लंगर पहुँचाउंदे ने, ताइयों लंगरां वाले बाबे ये अखवाउंदे ने। हस्पतालों दे विच लंगर पहुँचाउंदे ने, सोनी बाबा लंगरां वाले तां अखवाउंदे ने। गुरु चाल जी तो मिल गई गुड़ती सेवा दी, ओदी कृपा होगी वंडदे मेवा जी, ओदी कृपा होगी वंडदे मेवा जी। लोड़वंदां दियां शादियां भी करवाउंदे ऐ, बना के धीआं डोली विच बिठाउंदे ऐ। आशीर्वाद ए दे के फर्ज निभाउंदे ने, सोनी बाबा लंगरां वाले तां अखवाउंदे ने। श्री गंगानगर विच भी लंगर चला दिता, मानवता लई सच्चा फर्ज निभा दिता। प्रशासन तो लै आगे कदम वधाउंदे ने, सोनी बाबा लंगरां वाले तां अखवाउंदे ने। गौशाला रत्ता टिब्बा दी जानों प्यारी है, निभाउंदे दिलों जान दे नाल ए जिम्मेवारी है। समय समय ते गेड़ा रहिंदे लाउंदे ने, ताइयों लंगरां वाले बाबे अखवाउंदे ने। नवा बैड भी लंगरां लेखे लाया सी, चीर वड्ड के उस नाल लंगर पकाया सी। कारज कोई विरले ऐसा निभाउंदे ने, ताइयों लंगरां वाले बाबे अखवाउंदे ने। अनेका होर भी काम करन भलाई दे, बनदे रहिंदे अक्सर दूध सफाई दे। अनेका होर भी काम करन भलाई दे, बनते रहते अक्सर दूध सफाई दे। वरतों कपड़े वाले थैले समझाउंदे ने, ताइयों लंगरां वाले बाबे अखवाउंदे ने। विच महापुरुष ऐसे घाटी होण लुकाई दे, दिलों जाना कम जो करन भलाई दे। कदे वाल ना विंगा होवे सारे चाहुंदे ने, ताइयों लंगरां वाले बाबे अखवाउंदे ने। साध संगत दा साथ भी बहुत जरूरी है, पैनी ददा हूरी ये संगत बिना न पूरी है। साध संगत दा साथ भी बहुत जरूरी है, पैनी ददा हूरी या संगत बिना न पूरी है। सदा संगत दे ही चरनी सीस नवाउंदे ने, ताइयों लंगरां वाले बाबे अखवाउंदे ने। ताइयों लंगरां वाले बाबे अखवाउंदे ने। गोयल साहब को बुक्का भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सोनी जी, विजय गोयल जी, बिंदु गोस्वामी जी, शरद जसोजा जी, राजकुमार जोग जी, गिल साहब, दीपक मिंडा जी, हरजिंदर जी, सेठिया साहब, सीतांटी जी। आज बहुत ही खुशी का दिन है
बाबा जी पंजाब से होते गंगानगर में भी आकर इन्होंने लंगर की सेवा प्रारंभ की है। बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि हमें इनका सहयोग और मिलेगा। सभी हॉस्पिटल्स में जाके ये सेवा प्रदान करेंगे। हम पूरा इनको भरोसा दिलाते हैं, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी हम पूरे तन मन धन से इनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। आपका स्वागत और अभिनंदन है हमारे सबकी तरफ से। सभी सम्मानित मंच, ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। खाना बनाना फिर आसान है, उसे आगे बरताना उससे भी बहुत बड़ा काम है। मैं आपको बताऊं तो बाबा जी को बहुत बहुत साधुवाद। हमें तो आपसे आशीर्वाद चाहिए कि आप इतनी मतलब हमारे से 2 गुना उम्र में होके और ये शुरू कर रहे हैं, और हम आपसे सीखेंगे और हम भी आगे और इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पधारे, हमारे आदरणीय विधायक पुत्र विशाल जी ने आपको भरोसा दिलाया है कि हम हर तरह से आपके साथ हैं। जहाँ भी आप हमारी जरूरत समझो, हम हर टाइम तैयार हैं। जिस चीज़ की भी आपको जरूरत हो आप हमें याद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको पूरा विश्वास और उम्मीद दिलाते हैं कि आपको कहीं पे भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ खड़े हैं। जब भी आप आवाज लगाओगे आधी रात को हम आपके साथ तैयार खड़े इस कार्य के लिए, हम कोई पीछे नहीं हटेंगे। हमारा कर्तव्य यही है, हम इंजन के, ये बाबा जी इंजन बन के आए हैं। हम जितने डब्बे सेवा करनी नहीं पड़ेगी, इनके साथ जुड़ते जाएं और सेवा गंगा की तरह बहेगी। और विनोद गोयल जी के शब्द बहुत अच्छा और पूर्णता और जनता वास्ते कोई कार्य नहीं हो सकता। जो मैं पहले अपने भाषण में भी किया कि ऐसे माई लाल धरती दे बहुत थोड़े पैदा होंगे हैं जिन्हों के विचार ऐसे होंगे हैं कि जनता नाल, गरीब जनता नाल सब नूं लंगर मिले। आए गए नूं हॉस्पिटल जो उनका अटेंडेंट आता है उसमें भी लंगर मिले, और ऐसा तो शुभ काम कोई नहीं हो सकता। जिस तरह से मैंने इनको कल भी रिक्वेस्ट की थी, हमारे लिए जो भी आप समझेंगे वो हम आपके साथ रहेंगे। और इन्होंने मुक्तसर, अमृतसर और कई जगह बहुत ही लंगर का काम कर रखा है, और गंगानगर के शुभ धरती पे इनके पाँव पड़ने से हमारा गंगानगर भी कामयाब रहेगा।
डॉक्टर संदीप चौहान है और मैं गंगानगर के जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उसका प्रेसिडेंट हूँ। और मुझे ये बहुत ही खुशी का विषय है कि कोई शख्स, कोई महान आत्मा आगे आ रही है और आगे 365 दिन सुबह और शाम का लंगर के सभी रोगियों के लिए व्यवस्था कर रही है। मैं मान के चलता हूँ कि बहुत बड़ी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छा काम है और मैं चाहता हूँ स्वामी जी इसमें आगे हैं, हम सब इनके साथ हैं, जो हम इनको मदद कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। और मैं मान के चलता हूँ कि आज के युग के अंदर अगर कोई भूखा पेट सोता है तो उस पाप का हकदार हम पूरा संसार हैं जो उस वक्त बैठ के खाना खा रहे हैं। तो एक बहुत पुण्य काम है, मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करके चलता हूँ कि काम बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़े। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਿੰਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਵੀ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 24 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਸੁਬਾਹ ਕਰੀਬ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੀਬ 5:30 ਤੋਂ ਤੇ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸੋ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।